Okay, great. Okay, so this is the day one of the bug hunting training, and I'm not going to take all the sessions and all. So as we have mentioned in a poster, like Karthik sir is going to complete all the training. Okay, so today I have to share some of the informations regarding the attendance, regarding the certificate criteria, and regarding the language issues and all. So for that purposes, I have connected. So will not cover up like more than 30 minutes to 40 minutes right now today. Okay. So other person guys, just let me know those who are like unable to understand the English language or Hindi language. You can write in a chat box too if you guys are unable to understand Hindi language. So that will prepare our plan accordingly. English would be fine. Okay, how many students are there or like people are there? Those who are like more comfortable in English because we have not mentioned in the poster. I don't know like whether like Karthik sir is going to take all these sessions in Hindi language or English language. Okay, English. I guess Karthik sir is there with us. So let's just talk with him too. Karthik, are you there? Give me 1 minute, guys. Let me just check. My screen is visible to all of you. Just let me know again. Okay, fine. So I have just received a message that Karthik sir is mainly like 70% to 80% contents is going to cover up in Hindi language. So is a bad news for the English audiences. So I can't do anything on that, but I can do one thing. Like for the English audiences, I'll summarize the session. Okay. So those who have connected for the English sessions, I'll summarize the session. Not an issue. So probably it will decrease the percentage of getting more knowledges, but at least you guys will like cover up all those sessions. Okay. Okay. Let's just students are still joining. Let me just allow last. Okay, that's fine. Okay, let's just open Paint. So okay, without wasting the time, let's just start the sessions about the informations and the contents too. So today we are going to cover up 30 to 40 minutes of the session. This is actually an introductory session. So I'm not going to cover up the contents and all. So although things will be covered by Karthik sir and whatever the contents he is going to cover now, I'll just summarize all those contents so that English audiences can understand all the thing. Okay. So before starting the sessions, firstly, I just want to tell you guys, you have not connected to learn with an individual instructor, right? We are the organizations. You have connected with the private limited companies, right? So with the organizations, you are going to train in a bug hunting. And the very first time, I have just assigned any instructor or any expert in the bug hunting. Similarly, in the upcoming futures, I'm going to assign some of the forensics investigator too.
And personally, in a YouTube videos or in a previous public sessions, I have just shared, like we are going to start a Android hacking series or the Black Hat part 4. So till that I have uploaded in a YouTube. So after then we are unable to upload any contents on a YouTube. So we'll try to upload those things in applications too. But we will share out either in an Instagram or either in a WhatsApp group. We'll share out definitely. In the end of November, we are going to start, or we are going to take up 2 to 3 more parts in a Black Hat series. So stay connected for the public sessions. No need to pay extra for that, or no need to do anything for that. Okay, just stay connected. Information will be either shared on Instagram, Telegram, or like social media platforms, either on a LinkedIn. Okay, so that is the first information. Second information is that from when we are going to start the content. So this is an introductory part, but we can count this as in day 1. Okay, so you can think like, okay, 12th of November we are going to see, and on 13th of November, Karthik sir is going to take the session. So tomorrow he will introduce, and then some starting topics and all. So whatever the topics he just want to share, he'll share out. But definitely we have included some practical things too. So we are ensuring like many of the students na, those who are like beginning जो बिल्कुल ही basic phases में है, after learning these things or these tools and these strategies, they're at least able to find out any bugs either on a HackerOne or either on a Bugcrowd account. तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म से bugs वगैरह निकाल पाए. Except कि जो totally ही beginners हैं, at least they have basic knowledge on Linux or they have expert on penetration testing और BAPT, तो उनसे तो निकल जाएगा. So we just want, और आगे in future में आपसे ऐसा कुछ निकलते हैं तो हमें थोड़ा बहुत क्रेडिट दे देना कि आपने कहाँ से सीखा था, अगर आप निकाल पाते हैं तो. That's it. Okay. Okay, so 13th of November Karthik sir is going to take, and 14th of November हमारा जो है ऑफ है बिकॉज ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ कार्तिक सर, वो नहीं ले पाएंगे 14th of November को. सो दैट्स व्हाई आई हैव असाइन्ड ऑन दैट डे आई विल कनेक्ट फॉर द डाउट सेशंस. अगर in case any doubts or for the 30 minutes I'll connect, but this will not included under the training. But yeah, so 12th, 13th, 14th, and then 15th and 16th. 15th and 16th, Karthik sir is going to take the session. So on 16th, he is going to end of this training, going to end this particular training. And 17th of November, last sessions I'm going to take. Okay, 17th of November. Here I'm writing Luxor, and starting of 12th of November, rest of the sessions will be covered by Karthik sir. So 13, 14, 15, 16. So 14 will be doubt session. So 3 days majorly. He is going to cover up. So overall, if we'll count, so that's why in a poster we have mentioned 5 to 7 days of training. So you can count. And for getting the certificate, so it will be necessary to attend almost all sessions. So 1 or 2 sessions will be missed, then not an issue. You guys can raise a query. Otherwise, you guys have to connect all the 7 days or 6 days, I guess. So this is all about how many days we are going to cover up the whole contents, and we have planned for the in between 12th to 17th of November. Okay. During these sessions, I'll share out some Google form or like any kinds of links and all. So there you guys have to just put your email ID and the other credentials so that we can create your certificate and we'll issue your certificate and will be sent it into your email. Okay. So because this time you guys have just directly connected into the WhatsApp group, we have no information about yourself, you guys. So we'll share out on 17th or during these sessions, and we'll try to issue your certificate till 18th or 19th, 18th and 19th of November. You all will be eligible to get certificate. Okay, ignore the spelling. So this is the another information. And what are the other informations? Okay, there are some silly points like we don't want any kind of violations of securities and all. We don't want anything or like any complaints from the female student or female audiences too. Okay, sometimes it's happened. So if such cases happen, then I strongly like recommend to report. आप उसको report करें either
हमें या फिर तो आइदर साइबर क्राइम पोर्टल्स पे, अभी तो फर्स्ट एक्शंस पे आप हमें रिपोर्ट करना, विल डायरेक्टली रिमूव यू। तो ऐसे कुछ केसेस नहीं होने चाहिए। एंड अदर थिंग इज दैट ड्यूरिंग दिस सेशंस मे बी यू विल नॉट बी अलाउड टू आस्क द डाउट, और लाइक हम ऐसा 1-to-1 कम्युनिकेट्स वगैरह करने की फैसिलिटीज आपको ना प्रोवाइड करें। सो फॉर दैट वी हैव कनेक्टेड सेपरेटली फॉर द 14th of November, or like in any days of these sessions, I'll connect separately for 10 to 15 minutes, and during that particular time period, I'll resolve the issues, or like Karthik sir will resolve the issue. Okay. Okay, so I'm writing here the bug hunting topic. Bug hunting. What is bug bounty? I'm writing here the bug bounty. Bug bounty. Okay. Before starting the content, just let me know how many of you are totally beginners. Like you guys are like totally unaware about like what is hacking and what is bounty and what is bug kind of thing. Okay, I'm allowing the chat box. You guys can write in the chat box too, so that I'll get to know like मुझे कहाँ से start करना है, base कहाँ से देना है. For those who are at least intermediate level, or like those who are at professional level, so you guys have to keep patience for the first day or like second day too, and thereafter keep patience. Okay, beginners, just started. Okay. Okay, anybody's who are having any experience in bug hunting, those who have explored already, but they don't know like how to report, or they are not getting any bounties kind of thing, even they have reported for that particular bug. Okay. So Hindi audiences, guys, you guys are comfortable, no? Because in my opinion, like those who don't know English, na, sorry, those who don't know Hindi, they're aware about the English language, but जिनको हिंदी आती है उनको इंग्लिश भी समझ में आ जाएंगी. ओके ओके ओके, चलो तो मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा हिंदी में बोलूं फिर इंग्लिश में बोलूं, सो दैट दोनों को समझ में आए, नहीं तो ऑडियंसेस फिर आधा आधा समझ में आएंगे उनको. ओके, गुड गुड. इन द लास्ट डे मैं थोड़ा फिल्टर आउट करने की कोशिश करूंगा, आई ट्राई टू फिल्टर आउट कि जो लोग अच्छे होंगे थोड़ा उनको थोड़ा थोड़ा और हम असिस्ट कर देंगे, और विल ट्राई टू कनेक्ट यू गाइस विद कार्तिक सर और द अदर कम्युनिटीज देयर. आप वहाँ पे 3 to 4 मेंबर्स के कम्युनिटी में यू गाइस कैन ट्राई टू फाइंड आउट लाइक एनी बग्स एंड ऑल. ओके, चलो तो जिनको आता है उनको हम कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे, बाकी लोग ट्राई करना. चलो, सो थोड़ा सा मैं हिंदी में थोड़ा बताने जा रहा हूँ, एंड देन आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश टू. सो व्हाट इज बग बाउंटी? अभी हम आज के सेशंस में क्या करने वाले हैं, लेट मी जस्ट क्लियर ऑल दिस थिंग्स बिकॉज दैट इज माय स्टाइल. बिकॉज if we have planned for the 1 hour of session or 1.5 hour of session, I always plan in between this 1 hour and in between this 1.5 hour, what are the time period for a specific particular topic. Okay, so in 10 minutes or like 5 to 7 minutes, 5 to 7 minutes, I'm going to cover about the basic things, what is bug bounties, what is bug and bounty, वगैरह वगैरह. Okay, and in 10 minutes, we are going to understand about the platforms. We'll try to make an account over there. Try to make an account over there. Okay, so we'll see like कैसे वहाँ पे दिखते हैं जो वेबसाइट्स वगैरह पुट ऑन के होते हैं, और कहाँ पे हमें टेस्ट करना है वगैरह वगैरह. 10 to 15 minutes, और after 10 minutes we are going to see for 15 to 20 minutes, 15 to 20 minutes how to pick the websites, which tools, or like what are the scope thing or out of scope things, how to report वगैरह वगैरह, and labels of vulnerabilities, right? So these are the inside area. We'll explore the inside area. Okay,
and rest of the things like how to prepare a report, how to submit a report, and what are the tools and how practically we can explore with those tools, and how we can scan so that we can easily find out किस particular website में, किस particular server में, किस particular app में कोई bugs या vulnerabilities मिलती है कि नहीं, and after getting those bugs and all how we can exploit on that particular vulnerabilities. तो वो सारे contents वगैरह कार्तिक सर कवर अप करेंगे. अब वो कैसे कवर अप करते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि कम से कम वो कुछ तो आपको बेहतर ही बताएंगे. मुझे नहीं पता वो क्या कवर अप करने वाले हैं, बट हाँ ये सारी चीजें उनके थ्रू करी जाएंगी. हम दोनों ही एक्चुअली थोड़ा मिलकर आपको थोड़ा सा वहां पर सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे. दोज हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, जिनको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आई विल कनेक्ट टू. ठीक है, सो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं. फॉर 5 to 7 मिनट्स हम बग हंटिंग को समझते हैं. व्हाई बग हंटिंग इज इंटरेस्टिंग एंड इसका मतलब क्या होता है. तो बग्स का मतलब है कहीं ना कहीं लूप होल्स, एंड हम वल्नरेबिलिटीज भी बोल सकते हैं. जैसे लेट्स सपोज we are using many websites, we have explored many applications, we have explored many servers, right? अब अभी हम कुछ लेट सपोज आपने जो है नेटफ्लिक्स चलाया, नेटफ्लिक्स पे आपको कुछ इश्यूज मिलते हैं, बग्स मिलते हैं. सो वो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ चीजें हार्म हो सकती हैं, एंड आपने क्या करा, उसके लिए आपने एक प्रॉपर टेस्टिंग करी, एंड यू हैव पास्ड ऑन दैट, एंड यू हैव क्रिएटेड अ पर्टिकुलर रिपोर्ट ऑन दैट, एंड आपने उसको सबमिट किया. तो उसको सबमिट करने पे इफ दैट इज जेन्युइन and they are satisfied with your report, then they will give you a kind of bounty. bounty का मतलब होता है पैसा. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है पैसा. आपको कुछ पैसा मिलता है. एंड जिनकी बग हंटिंग स्ट्रॉन्ग होती है ना, दे डोंट नीड टू वर्क इन एनी पर्टिकुलर कंपनीज, या फिर बहुत कई बार हैकर्स क्या करते हैं, दे जस्ट डूइंग द बग हंटिंग फॉर द साइड इनकम. अगर उन्होंने मंथ में 1 या 2 बग्स में निकाल लिए तो उनको लाइक ठीक है, एक बग्स पे 10,000, 20,000, 30,000 डिपेंडिंग ऑन द बग्स एंड वल्नरेबिलिटीज आपको वैसा पैसा मिलता है. लाखों भी मिल सकते हैं. तो लेट्स सपोज एट एन एवरेज आपको 8-10 हजार के भी आपने बग्स निकाले, एंड यू आर ए गुड इन बग हंटिंग. तो 2 बग्स आपने निकाले, तो एक जो एवरेज इस टाइम पे 25-30 हजार के जो बच्चे की पैकेजेस लगती हैं, उतना आपने सिर्फ 2 बग में निकाले. दैट इज मिनिमम. तो इसी वजह से हैकर्स जो है आफ्टर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, और जिनका प्रो हो जाता है BAPT और बग हंटिंग में, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड ईयर लाइक फर्स्ट ईयर. इसकी कोई एज वगैरह नहीं है. आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग ऑन दैट. एंड ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है. सबसे लास्ट के सेशन में जैसे जैसे कार्तिक सर का सेशन चलता जाएगा, मैं समराइज आपको कराता चलूंगा कि बहुत सारे टूल्स हम एक्सप्लोर करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सो मेनी टूल्स, एंड आउट ऑफ ऑल दोज टूल्स ना, there are some famous tools are there. By using only those tools you can easily find out in a month 2 to 3 bugs, genuine bug. Okay, I'll let you know. उसके बारे में कुछ बता दूंगा, एंड कार्तिक सर जो बताएंगे उसके अलावे I'll let you know my personal experience too, एंड जो मैंने पहले कुछ बग्स वगैरह रिपोर्ट किए होंगे, उसमें क्या बाउंटीज मिले, किस तरीके के बग्स वगैरह थे. So I'll also share my experience, and Karthik sir is also share his experience. So 2 experts are there in ethical hacking and not personalized expertise in bug hunting. तो मैं bug hunting में इतना अभी काम नहीं करता, बट पहले किया करता था. अभी कार्तिक सर की एक्सपर्टीज में है, so he is going to take. ओके, तो बग का मतलब समझ में, लूप होल, कहीं पे ऐसा कुछ चीजें मिलता है कि आप सिस्टम को हैक कर पा रहे हैं, या वहां पे कुछ चेंजेस कर पा रहे हैं, आप डाटाबेस को हैक कर पा रहे हैं, आप OTPs चेंजेस कर पा रहे हैं, या फिर आप URL पे कुछ चेंजेस कर पा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ. आगे जिनको आप आइडिया होगा उनको समझ में आ गया होगा. सो दिस इज ऑल इनफ अबाउट द बग हंटिंग कि बग हंटिंग क्या है. अभी 2 मिनट में और इसमें बताना चाहूंगा कौन से लोग बग हंटिंग कर सकते हैं. तो जितने लोग टोटली बिगिनर्स है ना, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, टोटली बिगिनर्स हैं तो आप 5 दिन में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. जिनको लिनक्स में ऑलरेडी आइडिया है, जिनको अटैक्स में सब कुछ पता है कि XSS अटैक्स क्या कैसे करते हैं, SQL क्या होता है, CSRF क्या होते हैं, राइट, IDOR अटैक क्या होते हैं, HTML इंजेक्शन क्या होते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, ऐसे करके बहुत सारे अटैक्स हैं. तो उन सारे अटैक्स के बारे में, उसको कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में पता है. सो उनके लिए सेशंस और हेल्पफुल होगा, बिकॉज हम कुछ एडवांस टूल्स वगैरह भी बताएंगे. बाय यूजिंग ऑल दोस टूल्स यू कैन इजीली स्कैन एंड डिटेक्ट कि क्या है, उसके बाद फिर आपकी अपनी स्किल्स काम आएंगी. तो हम 1 by 1 ऐसे उंगली पकड़ के नहीं करा सकते. यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स भी आए होंगे, तो मुझे बता देना, फीडबैक एक बार दे देना कि आपको जो है मतलब कि आप में से मैक्सिमम लोग जो अगर प्रोफेशनल्स में नहीं होंगे, तो हम ज्यादा कोर लेवल पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, तो वैसा कुछ करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द बग हंटिंग एंड बग बाउंटी. अब बात ये आती है, समटाइम स्टूडेंट्स आर सेइंग मी कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज में बग निकाला, या फिर समटाइम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि हमने रैंडमली किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में वी हैव टेस्टेड ऑन एनी एप्लीकेशन एंड वी हैव फाउंड दैट बग, बट वी हैव रिपोर्टेड एंड वी कांट गेट, एंड हमें जो है कुछ किसी तरीके की बाउंटीज मिली ही नहीं, ऐसा कुछ, राइट. So generally, this is not a legal way to test on any website or any application or any server. आप किसी भी वेबसाइट्स पे टेस्ट नहीं कर सकते, दैट इज इलीगल. एट फर्स्ट यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर द परमिशन टू टेस्ट और टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग.
फॉर दैट पर्टिकुलर एनी सर्वर और एप्लीकेशन, तो उस पर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए परमिशंस लेते हैं, एंड आफ्टर दैट परमिशंस ओनली यू कैन अप्लाई द सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड ऑल। ठीक है, तो अगर हम रैंडमली उठा रहे हैं तो इट विल डिपेंड ऑन द माइंडसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहते हैं तो देंगे, नहीं चाहते हैं तो आपके ऊपर केस भी फाइल कर सकते हैं, तो आपको जेल भी हो सकती है, right? So this is illegal thing. So some platforms are there like you can make an account on Bugcrowd or like HackerOne, तो ऐसे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है। आपको कुछ कुछ और भी चीजें कार्तिक सर बताएंगे। तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आपको अकाउंट बनाने पड़ते हैं जहां पे कि ऑलरेडी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और लाइक वेबसाइट्स के लिंक्स या फिर तो सर्वर्स के लिंक या फिर एप्लीकेशंस की जिसमें भी वो टेस्ट कराना चाहते हैं, आइदर दे जस्ट वांट टू टेस्ट देयर सब डोमेन और लाइक मेन डोमेन, तो उस पर फिर आप टेस्टिंग करते हैं। उसके लिए उन्होंने एक पैसा फिक्स कर दिया है। सो वेयर टू चूज दैट, हम कहाँ से चूज करें उसको, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म पे, वहां पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन आई एम गोइंग टू जस्ट क्रिएट एन अकाउंट ऑन द Bugcrowd, और उसी तरीके से सिमिलर प्लेटफॉर्म पे आपको ट्राई करना है। अगर कार्तिक सर के पास टाइम मिला, बिकॉज 3 days ही मैंने असाइन कर रखा है उनका, तो मैं उनसे एक बार बातचीत करके डिस्कस कर लूंगा कितना टाइम मिलता है, उसके बेसिस पे आगे वो कंटिन्यू करेंगे। मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, सो दैट जिनको थोड़ा आता है हैकिंग, वो उनका थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाए कि नहीं अब हमें थोड़ी इतनी कॉन्फिडेंस आ गई कि वी कैन लाइक फाइंड आउट एनी बग्स एंड। ठीक है, तो उसमें अभी हम जाएंगे, 10 मिनट के लिए अकाउंट्स बनाते हैं, और इनसाइड एरिया को समझना ही काफी लंबा टाइम लग जाएगा। तो कैसे पिक करना है, कौन सा वेबसाइट को करे, कितना वहां पे पैसा मिलेगा, तो वैसे वैसे। ठीक है, मैं Bugcrowd के अकाउंट पे जाता हूँ एंड लेट्स जस्ट क्रिएट एन अकाउंट, एंड उसके बाद फिर मैं आऊंगा कुछ अगर रह गए आपके तो यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है, देखते हैं। और ये कस्टमर और रिसर्चर, मैंने रिसर्चर करा तो बनेगा क्या? यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे जाना, और इधर एक बार क्रिएट करके देखते हैं। ईमेल आईडी से क्रिएट करने को ऑप्शन नहीं देते हैं क्या ये? चलो मैंने यहाँ पे क्रिएट करा, स्लाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ही डाल सकते क्या? टेस्टिंग ईमेल पे हमने डाल दिया, टेम्प मेल डालें, टेम्प मेल डालेंगे तो चलो टेम्प मेल से बना देता हूँ। आप टेम्प मेल से मत बनाना, दैट बिकॉज दिस इज जेन्युइन, एंड इफ समटाइम्स दे नीड योर अदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट टू, लाइक अगर आपको पैसे आ रहे हैं तो आपके बैंक डिटेल्स वगैरह वगैरह, आधार कार्ड वगैरह वगैरह कुछ भी वेरीफाई करने के लिए एक कुछ जेन्युइन डॉक्यूमेंट आपसे ले सकते हैं। तो पुट द जेन्युइन डिटेल्स। तो यहाँ से from tomorrow you guys can create an account on these two and another platform too, and further whatever the doubts will be you can ask with Karthik sir. So क्या हो रहा है यार, इसको लेते हैं, चलो कोई भी ईमेल आईडी डालते हैं। जस्ट क्रिएट, कंफर्मेशन मिल गया होगा, सेव कर दिया, एंड देखते हैं। तो इस तरीके से अकाउंट बनानी है आपको। वेलकम दिस कंफर्म माय अकाउंट। ठीक है, लॉगिन करते हैं। Okay, so we are into this now. After creating the account, you guys can update all your profile like pictures, username, वगैरह वगैरह, right? So I'm going to write here username anything. Okay, biography, if you want, you can write. Otherwise, just click on continue. Residence, you can mention, or here you can choose like beginners, skilled, or professional. Okay, so depending on your knowledge,
I'll suggest you can choose beginners. Okay, let me just also create the beginners account. You can choose I'm a student, I'm this, I'm a developer. So you can choose I'm a student, I'm programming, I'm studying networking, this information security. You can check mark all. Click on continue. So skills, in skills you can mention like anything, C programming, API testing. If you don't have any skills in the above, also you have to choose like 3 to 4. So just choose whatever you want. Okay, let's just API testing, code review. I'm just going to choose Java, Ruby, this one. Okay, let's just continue. Introduction to Bugcrowd account. Okay, so we are in. So we have successfully created an account. I hope कि आपको अकाउंट इसमें कैसे बनाने हैं Bugcrowd में आपको समझ में आएगा. अब ये क्या है, मैंने बताया क्या कि हम कहीं से भी किसी भी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पे टेस्ट नहीं कर सकते, राइट. सो देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म जहां पे ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस अपने वेबसाइट्स को या अपने डोमेन्स को पुट करते हैं कि आप उसमें टेस्ट करो और उसके लिए कितना पैसे देंगे और कैसे फाइंड आउट करना है. एवरीथिंग दे हैव मेंशन. सो लेट्स जस्ट एक्सप्लोर ऑल थिंग्स. At first, I'm going to open this profile. Once you'll create your profile, so it will look like this, and your rank will be this. Current rank is this one. So by seeing this rank, आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया में और ये वर्ल्ड वाइड चलता है, तो बहुत ज्यादा लोग हैकिंग तो बिल्कुल नहीं करते. For the verification, you can verify like by ID. That's why I have said like आपको ID वगैरह देना पड़ेगा. Later on like आपको पेमेंट मेथड्स भी इनेबल करने पड़ेंगे for getting the payments. Okay, this one is this. So let's just go to the dashboard. Okay, so here so many events are going on. Engagement, work. Let's just go to the engagement. Okay, right. So in this section, we can see clearly like these are the already listed bug bounty. All these organizations or these particular domains have already listed in the Bugcrowd account. Okay, so Bugcrowd servers you can see. Okay, so OneTrust company is there, or these companies is there. This is another company. These are some companies. Okay, they have listed their domain or their server or subdomain so that hackers or bug hunters can choose any of these. And if they are able to find out the bugs on these, they will get these kind of bounty. You can see, अगर हमने let's suppose कि मैंने इस पे कोई bugs निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि minimum payment you will receive is $150 and maximum is $2,000. तो आपको जो है बस 15,000 से लेके आपको 2 लाख तक की bounties मिल रही हैं इसमें, ठीक है. जैसे बिगनिंग क्लासेस, तो मुझे बस इसका ओवरव्यू बताने दो, बाकी आपको कार्तिक सर बताएंगे. नीचे स्क्रॉल डाउन करा, यहाँ पे देखो 80 लाख तक भी आपको मिल रहे हैं. दैट्स व्हाई मैंने कहा कि अगर आप 1-2 बग्स पे निकालते हैं तो जॉब करने से फार बेटर है. इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट एनी बग्स, तो उतना आपको नॉलेज होना चाहिए. सो मेनी थिंग्स आप इधर स्क्रॉल करके जो है फाइंड आउट वगैरह वगैरह कर सकते हैं. नाउ द पॉइंट इज हाउ दे विल डिसाइड, और लाइक ये जो बाउंटी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हमने इसमें से पिक तो कर लिया. लेट मी जस्ट पिक एनी ऑफ दीज, उसके बाद थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करते हैं. लेट सपोज मैंने थोड़ा कम बाउंटीज वालों को पिक करता हूँ. थोड़ा स्टार्टिंग में कम बाउंटीज वाले को पिक करना, देयर विल बी हायर चांसेस कि आपको थोड़ा मिल जाए वो. सो किसको चूज करूं मैं? लाइम, ये क्या है? चलो इसको देखते हैं. आई एम गोइंग टू चूज दिस. ओके, सो दे हैव ऑफर्ड द बाउंटी $150 to 7,000. तो अराउंड 12-13 हजार से 6-6.5 लाख के आसपास मिलेगा. देखो एवरेज पे आउट इतना दिया हुआ है लास्ट 3 मंथ. तो सम पीपल्स हैव ऑलरेडी सबमिटेड द वल्नरेबिलिटीज फॉर दैट टू. कुछ लोगों ने ऑलरेडी इसमें सबमिट कर दिया गया होगा, लेकिन इसका अभी इन प्रोग्रेस नहीं है. सो आपका अगर आप बनाते हैं ठीक ठाक तो वो लिया जाएगा. चलो इसको एलिजिबिलिटी के लिए देखो, इन्होंने पहले लिख दिया यू आर अ रेसिडेंट ऑफ कंट्री अंडर द यूएस सेक्शन दिस. तो आप पूरे ना इसको सब कुछ पढ़ लेना कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है. If you are not eligible for that, go and choose the another one. But I'm just showing कि कैसे होते हैं ये, ठीक है. And how does the program work?
इसको काफी डीपली पढ़ना। सो हियर आर द टास्क। हम इतना ज्यादा या फिर कार्तिक सर इसको बताएंगे, मैं इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ इसको। तो इट्स योर टास्क कि आप इनको अकाउंट बनाने के बाद जो है इसको क्लियरली थोड़ा अच्छे से पढ़ें। आप जहां पे अटकेंगे, सी मेजरली लेट मी क्लियरली स्पीक ऑन दैट पॉइंट। if a particular student or a beginners want to do a bug hunting, now what are the major challenges he or she has to face? Okay, तो उनको क्या फेस करना पड़ता है? फर्स्ट थिंग इज दैट कि बग हंटिंग में ना उनको मेजरली हाउ दे कैन चूज एनी पर्टिकुलर डोमेन, और लाइक यहाँ से सर्वर्स जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया उसको कैसे चूज करेंगे वो, एंड इवन दे हैव चूज, उन्होंने चूज उसको कर लिया। नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट कि कौन से टूल्स को अप्लाई करेंगे जो लाइक वाइडली जो मोस्ट फेमस टूल्स हैं जिनके थ्रू जो है उनको इजिली वहां पे कुछ ना कुछ बग्स वगैरह मिल जाए। ओके, तो दे आर लैकिंग विद यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ टूल्स, तो वो नॉर्मली आपके VAPT के कुछ स्क्रिप्ट वगैरह को रन करते होंगे तो थोड़ी दिक्कतें आती होंगी। सो फॉर दैट कुछ एडवांस टूल्स वगैरह भी लाइक नेसस वगैरह को यूज कर सकते हैं, WP स्कैन को यूज कर सकते हैं, ओपनवास को यूज कर सकते हैं। सिमिलर टू लाइक दैट आप ऐसे और भी कई सारे टूल्स हैं जो आपको अपकमिंग सेशंस में बताए जाएंगे। ठीक है, तो वैसे टूल्स के इस्तेमाल से आपको पहले ही पता चल जाता है कि अब उसमें क्या बग्स हैं, राइट। अभी आपको पता चल गया, पता चलने के बाद वहां पे सेकंड प्रॉब्लम्स आता है। आपने स्कैन कर लिया, फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट कि हम कैसे स्कैन करें, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे OTP बाईपास हो सकता है, या हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे पेमेंट बाईपास हो पाएगा। तो वो पहला प्रॉब्लम्स आता है। दूसरा प्रॉब्लम्स आता है क्या कि हम वहां पे एक्सप्लॉइट कैसे करें। ठीक है, ये वाला सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पोर्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसके लिए उनको आना ही आना चाहिए। अगर उनको नॉलेज वगैरह नहीं है तो एक्सप्लॉइट वगैरह नहीं कर सकते। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज दैट कि अगर उन्होंने एक्सप्लॉइट कर लिया एंड सक्सेसफुली हो गया तो वो रिपोर्ट किस तरीके से प्रिपेयर करके सबमिट करें, दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो इन तीनों ही पॉइंट पे हम बातचीत करेंगे, tools and the resources from where we can scan and we can detect the vulnerabilities and how we can exploit, but exploitation वाले पार्ट का ना हम ज्यादा नहीं बता सकते, सिर्फ एक दो पर्टिकुलर टाइप ऑफ अटैक से बता ले, XSS में बता दिया हमने, या फिर हमने SQL वगैरह पे बता दिया। आप कार्तिक सर से पूछ के देखना, उनके पास अगर टाइम मिलता है सो ही विल लेट यू नो कि वो गाइड कर देंगे आपको। और एक दो उस पे बताया आपको, लेकिन बाकी के अटैक्स तो आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे। हम तो ऐसा नहीं कि 4 दिन में आपको सारे अटैक्स पे एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आप करेंगे उसमें। ठीक है, एंड थर्ड वन इज कि हाउ वी कैन रिपोर्ट एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ लाइक बेटर रिपोर्ट, जिससे कि आपको बाउंड्रीज मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। सो इन तीनों एरिया पे काम करा जाएगा, बट फॉर दैट स्टे ट्यून। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको पिक किया, मैंने रेंडमली पिक किया। लेट्स जस्ट स्क्रॉल डाउन करने पे देखो व्हाट हैपेंस आफ्टर यू सबमिट, तो पूरा पढ़ लेना है इसको। ठीक है, okay, once you'll go down, so they had mentioned public in scope, वो बाउंड्रीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उन्होंने। यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा होगा P1 P2 P3 P4 करके, एंड व्हाट आर these are a label of vulnerabilities, ये लेबल्स ऑफ vulnerabilities है। अगर P1 लेवल की vulnerabilities है, दैट मीन्स कि आपने बहुत कुछ एकदम डेंजरस टाइप ऑफ इश्यूज निकाल लिए उसमें। सपोज करो कि पूरा का पूरा डाटाबेस को हैक करा जा सकता है, या फिर उसके सारा डाटाबेस के डाटा ब्रीच हो सकते हैं, लीक हो सकते हैं, ऐसा कुछ आपने vulnerabilities निकाल लिया। ओके, तो अगर ऐसा कुछ निकाला आपने तो क्या होगा, ऐसा कुछ निकाला तो उसको वो लोग हायर बाउंड्रीज देंगे, उसको सबसे P1 लेवल की कैटेगरीज में डालेंगे वो। फिर उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो P2 लेवल में। अब ये डिसाइड होता है P1 एंड P2 P3 लेवल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में। समटाइम्स अगर आपका वहां पे SQL की वल्नरेबिलिटीज है, XSS की वल्नरेबिलिटीज है, तो वो कई बार उसको P4 या P3 में काउंट कर देंगे, कई बार उसको बाउंड्रीज में ही नहीं रखेंगे। सो दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि कौन से कैटेगरी के ऑफ अटैक को वो किस में काउंट करे। बट मेजरली आपको ऐसा समझना है, P1 का मतलब बहुत हायर लेवल की वल्नरेबिलिटीज उसमें निकली है, बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है ऑर्गेनाइजेशंस को। P2 थोड़ा उससे कम, ठीक है, P3 थोड़ा उससे कम, और P2 से भी थोड़ा कम। इसमें माइनर लेवल के आप समझ सकते हैं, समटाइम्स CSRF या फिर तो कुछ आपके HTML इंजेक्शन और लाइक आइडोर अटैक, ऐसे चीजों को काउंट कर लिया जाता है। P4 बिल्कुल ही बेसिक्स टाइप, XSS वगैरह में कई सारे टाइप्स होते हैं, उनको काउंट किया तो किया, नहीं तो उनको भी नहीं काउंट करेंगे। दैट मीन्स P1 इज फॉर लाइक बिगिनिंग लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी, सबसे बेसिक लेवल के वल्नरेबिलिटीज अगर आपने निकाले तो वो चांसेस है उन्होंने इन स्कोप में दे दिया हो तो दैट विल काउंट अंडर द P4 वल्नरेबिलिटीज, अदरवाइज आपको बाउंड्रीज नहीं मिलेंगे। देयर इज वन अनदर कैटेगरी, सो P1 P2 P3 P4 एंड P5 टू, P5 भी होता है। इफ यू हैव फाइंड आउट सम लाइक अदर काइंड्स ऑफ इश्यूज एंड एरर्स, तो उस केसेस में क्या होगा, आपको बाउंड्रीज नहीं मिलेंगे बट आपको साउट आउट मिल जाएगा। सो मे बी अगर आप किसी टाइम पे रिपोर्ट कर रहे हैं और आपने उसको क्लियरली उसी तरीके से फाइंड आउट नहीं किया होगा तो आपको बाउंड्रीज नहीं मिलता होगा, बिकॉज दैट बग्स विल बी गो अंडर द P5 लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटीज, राइट। और आपको लगता है कि हमने वैसे ही कुछ निकाला था, इसकी पूरी क्राइटेरिया है। इफ दे हैव मेंशन ना आपको XSS में ये निकालना है तो उसी तरीके से वैसा ही निकाल के देना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल जस्ट
पुट दैट पर्टिकुलर बग इनटू द P5 कैटेगरी, और आपको साउट आउट देके एक ईमेल भेज के छोड़ देंगे, आपको बाउंड्रीज नहीं मिलेंगी. सो दीज आर सम क्रूशियल पॉइंट जहां पे आपको ध्यान रखना है. अभी आगे के सेशंस में आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी. सो आई गेस आपको समझ में आया होगा. P1 सबसे डेंजरस, P2 उससे थोड़ा कम, P3 थोड़ा उससे कम, P4 सबसे बेसिक और P5 और भी बेसिक. उसके लिए तो बाउंड्री भी नहीं मिलेगा, बट अगर आप इनिशियल फेजेस में वो भी निकाल ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड. नाउ कमिंग बैक टू दिस एरिया, अभी इसमें उन्होंने कहाँ पे टेस्ट करना है, आपने उसको चूज किया. शो मोर पे क्लिक करते हैं, शो मोर पे क्लिक करते हैं एंड ओके देखो इन्होंने ना मेंशन कर दिया है दीज आर सम सब डोमेन. इसको आप ओपन करोगे तो ओपन करने पे कुछ खुलेगा, इसको ओपन करोगे कुछ खुलेगा. एंड दे हैव मेंशन आल्सो कि उन्होंने किस पे काम कर रखा है, एपीआई टेस्टिंग, ऑब्जेक्टिव सी, स्विफ्ट यूआई पे काम किया हुआ है. सो दे हैव मेंशन ऑल द थिंग्स. तो इस डोमेन को आप पुट करो, इसको स्कैन करो, फाइंड आउट दिस आईपी एड्रेसेस और उस सर्वर पे क्या क्या इशू हो सकते हैं, हम क्या डोस अटैक कर सकते हैं या कुछ और अटैक कर सकते हैं. तो उस आईपी इस डोमेन को स्कैन करके पता चलता है. एंड दिस इज द सेम प्रोसीजर अप्लाइड टू ऑल जितने भी यहाँ पे लिस्टेड है, एटलीस्ट फॉर द बग क्राउड. बग क्राउड में जितने भी आप अभी ओपन किसी को भी करेंगे तो वो लोग ना अपनी यूआरएल का लिंक दे देंगे, सब डोमेन का लिंक दे देंगे. लेट सपोज मैंने पुट कर दिया slithrin.co.in, राइट. सो यू गाइस कैन गो देयर एंड उसका आईपी एड्रेस निकाल रहे हैं, उस सर्वर पे उसको पूरी टेस्टिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या बग्स वगैरह निकल रहा है. तो वैसा कुछ होता है. ठीक है. अगर एंड्रॉइड बग के लिए, सॉरी एंड्रॉइड ऐप के लिए आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी इन्होंने डिटेल्स वगैरह दे रखे हैं. देखो प्राइवेट इन स्कोप इन्होंने ना, अब यहाँ पे दो कंसेप्ट और आते हैं. वन इज लाइक इन स्कोप थिंग एंड अनदर इज आउट स्कोप. व्हाट इज इन स्कोप एंड व्हाट इज आउट स्कोप? सो इफ यू आर टेस्टिंग the bugs, those who are already like included under the out of scope, then you will not be counted to get a kind of any kind of bounty. तो आपको bounties वगैरह वहां पे नहीं मिलेगी. Let me just show you. मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ. These are the out scope thing. So in scope में इन्होंने clearly mention करा कि आपको इन चीजों पे टेस्टिंग करनी है. And they have also mention what kind of attacks or what kind of security issues we will consider those issues under the out of scope thing. Okay, so the following findings are out of scope. देखो cookies flake, अगर आपने cookies flake से related कुछ issues निकाले and you have find out any attacks that requires the unauthorized access to user client browser phone. Okay, and zero day vulnerabilities. Okay, अभी आपको CVE के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. तो इसमें फाइंड आउट करने के लिए एज पर माई नॉलेज जहां तक मैं देख रहा हूं आपको थोड़ा बेहतर नॉलेज होना चाहिए. देखो आपने ऐसा कुछ किया, इफ यू हैव डन सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग अटैक, इससे आपने कुछ ऐसा कुछ किया, देन दैट विल बी टोटली काउंटेड एज एन आउट ऑफ स्कोप थिंग. WAF बाईपास आपने किया तो भी वो. इसके बाद फिर और क्या, यू हैव फाइंड आउट द robot.txt और काइंड ऑफ थिंग, तो इसको भी इन्होंने वो कर दिया एक्सेसिबल एंड नॉन सेंसिटिव फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. तो उसको कुछ आपने फाइंड आउट किया तो उससे कोई मतलब नहीं है. टेक्स्ट इंजेक्शंस को भी इन्होंने डाल दिया है. एंड दिस इज अ मेजर इश्यूज गाइस. समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस आर पेइंग फॉर दिस टू. ये हमारे भी वेबसाइट्स में इश्यूज थे इसमें. तो ये क्या होता है ना, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सर्वर पे जो लेट सपोज कि आपको एक ईमेल आता है हमारे कंपनीज की तरफ से कि लेट सपोज amit@slithrin.co.in and we have not configured the SPF, DKIM and DMARC compliant. Okay, ये सारे हमारे सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स है. So that we'll get to know कि कोई ईमेल को किसी ने स्पूफ किया हो तो वो पता चल जाता है. तो अगर ऐसा कुछ आपने इशू निकाल लिया कि उस ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने ईमेल सिक्योरिटी पे ये चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर रखा है, दैट इज अ मेजर इश्यूज इन साइबर वर्ल्ड. यू कैन से ये मेजर इश्यूज है इस टाइम पे. लेकिन इसको भी इन्होंने किस में डाला है, आउट ऑफ स्कोप में. तो अगर आपको मिला तो आपको नहीं मिलेगा बाउंड्री. इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्लिक जैकिंग एंड CSRF, दीज आर द टू फेमस अटैक, बट इसको भी इन्होंने आउट ऑफ स्कोप में डाल रखा है. आप समझ में आए, कई बार वी आर फाइंडिंग सम इश्यूज एंड ऑल, वी आर फाइंडिंग द बग्स एंड लूप होल्स एंड ऑल, बट वी आर नॉट गेटिंग बाउंड्रीज बिकॉज वो आउट ऑफ स्कोप के भी होते हैं. तो आउट ऑफ स्कोप वाला बिल्कुल फाइंड आउट नहीं करना. देखो इन्होंने बहुत सारा कुछ डाल दिया. इन्होंने प्रोबेबली डोस अटैक को भी डाल दिया. देखो वही सारा इन्होंने डाला है. ये सब देखो डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट कंसिडरिंग द डोस अटैक एज एन पार्ट ऑफ बाउंड्री. तो डोस अटैक का मतलब क्या, आपने सर्वर को ही डाउन कर दिया, आप कुछ खुल ही नहीं रहा है उसमें. तो ये सारा कुछ आपको समझना था. अब इसके बाद अभी इन्होंने कुछ डोमेन्स वगैरह भी दे दिए हैं कि आप इन डोमेन्स पे टेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको नहीं करना है उसमें. इफ यू हैव डन दैट देन दैट इज अ पार्ट ऑफ इलीगल थिंग. तो ऐसा कुछ है. सो आई गेस आई हैव समराइज्ड ऑल द कंटेंट्स कि आप कैसे पिक करेंगे. मैं एक बार बैक जाता हूँ एंड बैक जाने के बाद लेट मी जस्ट पिक अनदर वन. मैं इनमें से कुछ और लाइक ओपन ट्रस्ट, इसको ओपन करता हूँ. वन ट्रस्ट को ओपन करा तो इसमें भी समटाइम्स
वो मेंशन कर देते हैं आपको व्हाट आर द मेजर एरिया टू फोकस, कि कौन सा अटैक में कौन से टूल्स वगैरह पे मेजरली फोकस करना है। यहाँ पे बॉन्टीज ये है, देखो इन्होंने डोमेन दे दिया, इस डोमेन को आपको उठाना है और इस पे टेस्ट करना है। देखो इन्होंने दिया है क्या, आउट ऑफ स्कोप टारगेट, यू डोंट हैव टू टेस्ट ऑन दीज सब डोमेन्स। ये भी हो सकते हैं उन्हीं के होंगे, कुछ आपको मिलेंगे सब डोमेन्स वगैरह, इन सब में टेस्ट नहीं करना है। इनमें कुछ मिलता है आप खुश होते हो, बट वो आउट ऑफ स्कोप थिंग है। देखो फोकस एरिया में इन्होंने लिख दिया पहले यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या क्या आप कर सकते हो, कंज्यूमर राइट्स पोर्टल एंड इन जहां पे भी लिखा है ना फोकस एरिया, तो इन पोर्टल्स पे आप मेजरली टेस्टिंग को ले जा सकते हो उसमें, ठीक है। एडिशनल नोट कुछ नहीं दिया। आउट स्कोप में देखो इन्होंने भी इसको आउट स्कोप कर दिया, इन्होंने एक्सेसेस को करेंटली आउट ऑफ स्कोप रखा है, राइट, एंड वो भी अच्छा खासा बग्स में आता है वैसे। एंड डोस एंड डिडोस तो मैंने बताया ऑलमोस्ट हर में, CSRF को भी इसने इन्होंने डाल दिया इसमें, तो कुछ आपको क्लिक जैकिंग को भी डाल दिया। दीज आर द टाइप ऑफ अटैक आई एम जस्ट मेंशनिंग, तो टाइप ऑफ अटैक से इसको इन्होंने आउट ऑफ स्कोप डाल के रखा है, तो इनको फाइंड आउट नहीं करना है। बाकी तो ठीक है, P4 लेवल तक यहाँ पे दिखा, मैंने P5 भी बता दिया, समटाइम्स वो P5 नहीं होता यहाँ पे, बट कुछ कुछ लोगों में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने P5 मेंशन करके रखा हुआ था। चलो, सो आई गेस टिल नाउ क्लियर टू ऑल, आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। देखो बग बाउंटीज है क्या, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके टेस्टिंग करना, अकाउंट बनाना, यहाँ से चूज करना। अब वही जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास में, अभी आपके पास में डाउट्स आ रहा होगा, सर ओके वी हैव अंडरस्टैंड टिल now how we can, let's suppose we have got this particular link. Okay, let me just open this. Okay, so this is the interface. Now it's your task to apply so many testing on this. So यहाँ से पहला प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि सर हमें ये डोमेन मिल गया, वी हैव फाइंड आउट द डोमेन. नाउ योर टास्क इज दैट to convert this domain into an IP address, because after getting the IP address more easily you can put those IP address in so many tools, और वहां से आप इसके कई सारे सब डोमेन को फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन टोटली स्कैन यूजिंग सेवरल सॉफ्टवेयर्स की इसमें इसके सर्वर्स में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, एंड उससे आपको स्कैन करके पता चला कि क्या क्या बग्स हो सकते हैं, एंड मेक श्योर कि जो भी इश्यूज इन बग्स उसने दिखाए वो आपको आइडिया हो उसके बारे में. तो उसके बाद ये योर टास्क कि आप उसके बारे में थोड़ा पढ़े, हाउ वी कैन एक्सप्लॉइट ऑन दैट. अब उसमें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. सो फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट और अंदर घुसने के लिए जो है देयर आर सेवरल मेथड्स for like doing attacks or like for doing exploit for individual attacks. Okay, like मैंने CSRF के लिए अलग से बता दिया, या XSS के लिए अलग हुआ, या IDOR के लिए अलग हुआ, या फिर डाटाबेस के लिए अलग से हुआ. ठीक है, तो सबके लिए थोड़ी अलग अलग टेक्निक्स है. विल लेट यू नो कि वो किस तरीके से करा जाता है. और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप इज दैट अगर वो सक्सेस हो गया, सो विथ POC हाउ यू कैन प्रिपेयर अ पर्टिकुलर रिपोर्ट. वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट भी मांगते हैं, तो वो कैसे प्रिपेयर करना है एंड देन कैसे उसको सबमिट करना है by showing that particular report is in scope, not in out scope. Okay, तो सारा कुछ मेंशन करना होता है एंड देन शो करना होता है. सो ये 3 स्टेप्स है, 3 दिन में मेजरली ये खत्म होगा, बट फिर भी हमने 4 to 5 डेज का ले रखा है. सो फर्स्ट डे इफ कार्तिक सर विल टेक ओनली द इंट्रोडक्टरी सेशन एंड समथिंग अबाउट द टूल्स एंड ऑल, देन फ्रॉम द 14 or 15 he is going to cover up the tools which is used for scanning all these vulnerabilities, and in second methods he will let you know how to exploit और हम अलग अलग attacks के लिए क्या strategies apply करें, and in third step he'll let you know how to report on that. And if some days if I'll connect, then I'll show my experience, because right now I'm not doing bug huntings and all. My major expertise are in networks forensics or real life hacking or black hat you can say. bug hunting पे मैं ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए. तो बट थोड़े टाइम बाद आएगा वो एंड्रॉइड हैकिंग वगैरह का. अब ब्लैक हैट से कुछ कुछ मॉड्यूल्स फिल्टर आउट करके मैं डालने की कोशिश करूंगा उसमें यूट्यूब में. तो लास्ट डे पे मैं आपको अपने भी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बताऊंगा. ये बहुत पहले मुझे ना मैं इसलिए उसको बताना चाहता हूँ बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एरिया पे फोकस नहीं करता. आई हैव जस्ट फोकस्ड ऑन 2 to 3 एरियाज, और उस पे ही मुझे बग्स मिल जाते हैं, तो क्यों ही मैं ज्यादा एक्सप्लोर करूँ. इफ आई हैव चूज 1 or 2 टूल्स है, मैंने नेसस पे फोकस करा, ओपन वार्स पे फोकस किया, बॉबसूट पे फोकस करा, तो बाय यूजिंग ऑल दिस 2 to 3 टूल्स ना आई एम एबल टू फाइंड आउट लाइक 10 वेबसाइट मैंने चूज करा, 10 में से मुझे 3-4 तो मिल ही जाते हैं बग्स वगैरह. So if I am able to find out those bugs and all, then why not you guys are. तो कहाँ पे आप मिस कर रहे हैं जहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा है वो. So that's why it's better कि आपको 2 लोगों के एक्सपीरियंसेस वगैरह मिलेंगे. So I think कि आपके थोड़े उसमें इम्प्रूवमेंट्स वगैरह होंगी. Now I am coming back to the this portal. I guess कुछ लोगों को समझ में आया होगा. जो लोग टोटली बिगनर्स हैं गाइज,
ये सेशंस यूट्यूब पे जाएंगे, पब्लिक होंगे, तो डोंट वरी जो लोग मिस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, उन लोगों को ये नहीं मिल पाएगा, सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएंगे, बाकी वो लोग वहां से सीख सकते हैं। तो बताना मुझे जरा यहाँ तक किसी के कुछ इश्यूज वगैरह। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको कल से अलाउ नहीं किया जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग एनी चार्जेस एंड ऑल। तो हम थोड़ा रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, जिनको करना है वो करो, जिनको ना करना है आप मत करो। यहाँ तक सबको क्लियर है? And we are not doing these things for a first time. I'm guiding the students for like past 4 to 5 years. Till now, I don't know, like 15,000, 20,000 students have been passed out. Okay, किसी का यहाँ तक में कुछ डाउट अदर देन उसके हाउ टू रिपोर्ट और हाउ टू स्कैन और हाउ टू एक्सप्लॉइट? वो 3 दिन के लिए हमने स्पेशली रखा हुआ है। एक दिन हम स्कैनिंग पे काम करेंगे, एक दिन एक्सप्लॉइट पे काम करेंगे, एक दिन रिपोर्टिंग पे काम करेंगे। इसके अलावा भी 1-2 दिन हमारे पास बचेगा, सो विल एक्सप्लोर ऑन सम अदर पोर्टल्स टू, कि हम 2-3 अटैक्स को एक्सप्लॉइट वगैरह करने पे देख रहे हैं। चलो ठीक है। यूट्यूब पे मैं फोकस नहीं करता, ठीक है। ऑनेस्टली यूट्यूब, आई डोंट लाइक प्रमोट एनीथिंग ऑन यूट्यूब, और आई डोंट प्रमोट एनी बैचेस ऑन लाइक एनी सोशल मीडिया एंड ऑल। हमारा बस वही है, 8-10 बच्चों 15 बच्चों को लिया, उनको गाइड किया, दैट्स इट, बात खत्म। तो साइबर सिक्योरिटी को मैं बिजनेस नहीं बनाना चाहता एक्चुअली, कि हम लाखों लाखों रुपए छाप रहे हैं वैसे करके। कंटेंट्स की बात करें तो मैं इतने सारे फ्री कंटेंट्स यूट्यूब पे कई बार ऐसे भी बता देता हूँ जिनके लिए लोग चार्जेस लेते हैं। अभी अदर जगह पे जाऊं आप तो चलो, अदरवाइज आप लक्सर करके सर्च करना, कुछ कुछ कंटेंट्स आपको मिलेंगे, तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। Okay, okay. Karthik sir has just said something. Okay, Karthik, let me just allow microphone for all, I guess. You can speak something to the students. I guess I have allowed the microphone. Hello. Yes, Karthik. We will introduce you for the tomorrow session, okay? So if anything else, you can guide the students for like 5 to 7 minutes. करंटली तो मैं अभी सबको ये कह पाऊंगा कि जो लोग बिगनर्स हैं अभी, जितने भी सबका ना वास्ट क्लियर रखो अपना। वास्ट टॉप 10 सबका मेजर रोल यहाँ पे प्ले करता है कि अगर आपको वल्नरेबिलिटी के बारे में पता नहीं होगा तो आप कैसे बग फाइंड करोगे मेन। तो सबसे पहले आपको वो चीज कवर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप बग हंटिंग वगैरह पे जाओ। और अगर आपका मान के चलो कि आप थोड़े बंदे जिसको पता है वास्ट के बारे में, वो सबसे पहले अगर बग हंटिंग में जा रहा है तो वो सबसे पहले हमें जितने भी हॉल ऑफ फेम वाले टारगेट्स हैं उनको चूज करे, ना कि सीधे प्लेटफॉर्म पे जाए। राइट, तो बिगनिंग वालों को समझ में आया कि पहले आपको प्रैक्टिस करनी है सारे अटैक्स वगैरह पे, उसके बाद फिर आपको उसमें घुसना है। और जिनको ऑलरेडी आता है उनके लिए तो फिर हम सारा ही वो बता देंगे जिससे कि वो इन कर सकते हैं। तो कार्तिक, इन लोगों को ये बताया जाएगा क्या कि आपने जो बताया कि सारे बिगनिंग की, आप एक बार ओवरव्यू सारी चीजों का बता दोगे, या फिर तो बिगनर्स को थोड़ा वो खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा? एक ओवरव्यू तो आप बता ही दोगे ना उसमें कुछ? हाँ, ओवरव्यू तो मैं दे दूंगा, बट इंटरमीडिएट वालों के लिए भी थोड़ा कुछ है स्पेशल कि उनको क्या क्या चीज चाहिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो इंटरमीडिएट है उनके लिए भी नई चीजें सीखने को मिल सकती है। कुछ बोनस पॉइंट है उसके अंदर, वो मैंने ऐड किए, जो मेरी फंडिंग्स हैं 1-2, वो मैं बताऊंगा। ओके, ग्रेट, ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आया ना? तो कल सेपरेटली कार्तिक सर कनेक्ट हो रहे हैं, एंड ही इज गोइंग टू कवर अप ऑल दोस थिंग्स। एंड एज आई हैव सेड कि बिकॉज मैं लगातार 5 to 6 ईयर से टीचिंग लाइन में हूँ, सो आई हैव एन एक्सपर्टीज की मैं, ठीक है, दोनों ही सारे ऑडियंसेस को हैंडलिंग कर लें। इनकी एक्सपर्टीज इनके स्किल्स पे है, राइट, नॉट ऑन द डिलीवरिंग द कंटेंट। सो इफ सच केसेस हैपेंस देन आई विल कवर इट, आई विल समराइज जो भी वो बताएंगे उसमें। तो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है, राइट, फॉर बिगनर्स ट्राई टू हंट ऑन द हॉल ऑफ फ्रेम प्रोग्राम। सो हॉल ऑफ फ्रेम प्रोग्राम पे भी जो बिगनर्स हैं वो लोग कर सकते हैं, और बाकी तो ये बता देंगे, ठीक है। चलो, सो मैं लाइक यहाँ पे आप ये चले जाना, लक्सर नॉर्मी सर्च करना लक्सर, तो आपको दिख जाएगा, या मैं ग्रुप में आपको शेयर आउट कर दूंगा। ये अपलोड करने के बाद उसके लिंक ही दे दूंगा, तो इसको देख लेना और प्रिपेयर कर लेना अपने, ठीक है।
लेट मी जस्ट ऑफ, अरे यार रुक जाओ, ठीक है इसको बंद करते हैं। So guys, for the specific doubts and the other things, we'll connect on a doubt sessions पे हम connect होंगे।